بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا الوداعی خطاب۔ انہوں نے کہا ہماری افواج کی مربوط حکمت عملی سے مستقبل کی جنگوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ تینوں افواج بالخصوص جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر کے لیے نیک تمنائیں اور دعائیں۔ کہا مکمل بااختیار اور مناسب صلاحیت سے لیس مسلح افواج نظام کے لیے ایک عملی ضرورت ہے۔ ان حالات میں مسلح افواج کو زیادہ ہم آہنگی، مشترکہ تعاون، یکسو مقصد کے ساتھ رہنا ہوگا۔ یہ ڈھانچہ جس طرح بھی قائم کیا جائے اسے اپنی نئی ذمہ داریوں کو ایمانداری، عزم کے ساتھ پورا کرنا چاہیے۔ یہ مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ایک ناگزیر تنظیمی اصلاح ہے۔ آپ کو بتائیں گے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا الوداعی خطاب۔ تینوں افواج بالخصوص جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر کے لیے نیک تمنائیں اور دعائیں۔ کہا مکمل بااختیار اور مناسب صلاحیتوں سے لیس مسلح افواج نظام کے لیے ایک عملی ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے رانا مقبول سے۔ جی رانا مقبول بتائیے گا۔ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نشان امتیاز منٹی کا الوداعی خطاب۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے اپنے اعزاز میں منعقدہ جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر میں الوداعی تقریب سے خطاب کیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کہنا تھا کہ ہمارے ارد گرد کی دنیا ایک ناقابل تصور رفتار سے تبدیل ہو رہی ہے۔ اس تبدیلی سے ہماری اندرونی اور بیرونی آزمائشوں پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ اثرات ہائی برانڈ محاذ رائی سے لے کر جنگ تک محیط ہیں۔ ان حالات میں ہماری مسلح افواج کو زیادہ ہم آہنگی، مشترکہ تعاون اور یکسو مقصد کے ساتھ تیار رہنا ہے۔ میں مسلح افواج کے درمیان ہم مشترکہ حکمت عملی اور تعاون کو ایک ضرورت سمجھتا ہوں تاکہ ایک خواہش پوری ہو سکے۔ یہ مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ایک ناگزیر تنظیمی اصلاح ہے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے اس موقع پر زور دیتے ہوئے کہا کہ میں اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک مکمل بااختیار مناسب صلاحیت سے لیس مسلح افواج نظام کے لیے عملی ضرورت ہے۔ ہماری افواج کو مربوط حکمت عملی سے مستقبل کی جنگوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ میں تینوں افواج بالخصوص جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر کے لیے اپنی نیک تمنائیں اور دعائیں پیش کرتا ہوں۔ یہ ڈھانچہ جس طرح بھی قائم کیا جائے اسے اپنی نئی ذمہ داریوں کو ایمانداری اور عزم کے ساتھ پورا کرنا چاہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ رانا مقبول تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ The world around us is transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy, and unity of purpose. I see tri-services synergy, jointness and coordination as a compulsion rather than a choice. A much needed organizational reform to meet these futuristic challenges. I foresee the requirement of a fully enabled and duly capacitated tri-services setup as an operational necessity. For synergistic tri-services employment within the realm of our military strategy to meet the future challenges of the conflict. I extend my best wishes and prayers for all the three services, and in particular to the tri-services headquarter, whatever form and demeanor it takes, for fulfilling the renewed responsibilities with dedication and commitment. مزید آپ کو بتائیں گے برادر ملک بحرین کے ساتھ اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا منامہ میں کاروباری برادری سے خطاب۔ کہا پاکستان اور بحرین میں برادرانہ تعلقات ہیں، آج باہمی تعلقات کو وسعت دینے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ بحرین میں موجود پاکستانی تمام شعبوں میں عظیم خدمات دے رہے ہیں، اب وقت ہے ہم مضبوط تعلقات کو معاشی تعاون میں تبدیل کریں۔ بحرین کے پاس عالمی مہارت اور معاشی تجربہ ہے۔ پاکستان بحرین کے ترقی کے سفر سے سیکھنا چاہتا ہے اور تعاون کا خواہاں ہے۔ ایکسلنسی شیخ خالد بن عبداللہ الخلیفہ ڈپٹی پرائم منسٹر آف بحرین، ایکسلنسی ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی منسٹر آف فارن افیئرس، ایکسلنسی شیخ سلمان بن خلیفہ الخلیفہ منسٹر آف فائنانس اینڈ نیشنل اکانومی بحرین، ایکسلنسی عبداللہ بن عادل فخرو منسٹر آف انڈسٹری اینڈ کامرس، ایکسلنسی محمد حساب ڈار
Deputy Prime Minister of Pakistan and Foreign Minister of Pakistan, members of Pakistani delegation, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At the outset, let me express my profound gratitude for the gracious and very warm welcome extended to my delegation, and ever since we have landed from our home to our home, Bahrain, we have thoroughly enjoyed the hospitality of our Bahraini brothers, particularly His Majesty the King and His मजीद आपको बताएंगे बहरीन के वजीर खजाना शेख सलमान बिन खलीफा ने कहा कि पाकिस्तान और बहरीन के रिश्ते तारीख से जुड़े हैं। वजीर आजम पाकिस्तान की मौजूदगी हमारे रिश्तों की तजदीद है। ज़राअत, IT और दीगर शोबों में दोनों मुल्क एक साथ काम कर सकते हैं। मजीद आपको बताएंगे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मनामा में बहरीन के हम मनसब से मुलाकात। वजीर दाखिला जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला आल खलीफा से अहम मुलाकात में दो तरफा ताउन और खत्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सिक्योरिटी इंसदाद मनशियात के लिए मुश्तरका इक़दामात पर भी बातचीत की गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों के इस्तेदाद कार बढ़ाने और मालूमात के तबादले के लिए निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने पर खुसूसी गुफ्तगू भी की गई। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का अयादा। मुलाकात दोनों मुल्कों के दरमियान महफूज और मुस्तहकम मुस्तकबिल के लिए अहम पेशरफ करार। और अब आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब ने खुसूसी तलबा के लिए खाने की फरहमी के प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया है। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि खुसूसी बच्चे हमारे हीरोज हैं। अल्लाह ताला ने खुसूसी बच्चों को बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा होता है। वादा किया था हर डिस्ट्रिक्ट में खुसूसी बच्चों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। सानिया आशिक ने कलील मुद्दत में मेरे ख्वाब को सच कर दिखाया। खुश हूँ अल्लाह ने मेरा किया हुआ वादा बहुत कलील अरसे में पूरा किया। 28 डिस्ट्रिक्ट्स में खुसूसी बच्चों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मुकम्मल कर दिया गया। सबको ये पता था कि जो स्पेशल अफराद होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, उनको स्पेशल किसी वजह से कहा जाता है। उनको स्पेशल इस वजह से कहा जाता है कि अगर कुदरत की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से उनके अंदर कोई कमी रह जाती है, कोई ऐसी चीज होती है जो किसी से वो लैक करते हैं, तो उसकी कॉम्पनसेशन में अल्लाह ताला ने उनको वो एबिलिटीज दी होती हैं, उनको वो क्वालिटीज दी होती हैं जो शायद हम जैसे आम इंसानों में नहीं होती। और उसका जब मैंने आज यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, मैंने आज जब वो पूरा स्कूल जो अब रेनोवेट हुआ है माशाल्लाह, जब मैंने वो देखा, मैं बच्चों से मिली, वो बच्चे जो देख नहीं सकते, बसारत से महरूम हैं, जितनी दूर वो बच्चे देखते हैं शायद बीनाई रखने वाले, आंखें रखने वाले इंसान उतनी दूर नहीं देख सकते। और जो समाज से महरूम है, मजीद आपको बताएंगे वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कायदे आज़म रहमतुल्लाह की कोशिशों से पाकिस्तान बना। भारतीय वजीर दिफा के बयान की मजम्मत करते हैं। सिंध हमेशा पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। इनकी गीदड़ भपकियां कभी कामयाब नहीं होंगी। इंशाअल्लाह सिंध हमेशा पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। खुद इस पर रेजोल्यूशन डालना चाह रहा था, और मैंने इसलिए कि हमारे यहाँ पार्टी में तरीका ये है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और चीफ विप से पूछा जाता है कि जी हमने करना है। चीफ विप से जब मैंने कहा तो उसने कहा नहीं, मैं आपको ये रेजोल्यूशन पेश करने नहीं दूंगा, ये रेजोल्यूशन मैं खुद पेश करूंगा, इसलिए कि इससे इम्प्रेशन जो स्टेटमेंट भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने दी उससे ये जाहिर हो रहा था कि शायद हिंदू कम्युनिटी के लोग सूबा सिंध में कोई तकलीफ में है, और इस वजह से उसने इस तरीके की स्टेटमेंट दी। तो मुकेश चावला ने कहा, और फिर उन्होंने ऑपोजिशन के मेंबर से भी बात की, और मैं ये भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस रेजोल्यूशन में उन्होंने पूरी हिस्ट्री
اور پریزنٹ اور جو اس وقت کانفلکٹ ہے ان سب چیزوں کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، اور میں شکر گزار ہوں کہ سب نے اس کو سپورٹ کیا. کیا کہا ہے ریزولوشن میں کہتے ہیں، اور جو سردار شاہ صاحب نے بھی تھوڑا سا بتایا ہے کہ آپ کئی ملک بننے سے پہلے، میں 1947 کی بات نہیں کر رہا، میں 18 جب انگریز ادھر آئے تھے اس کی بات بھی نہیں کر رہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے سعید غنی صاحب نے نقشہ دکھایا 624 بیفور کرائسٹ، رائٹ، یہی تھا، اور اس میں سندھ کا نقشہ تھا، جس میں ملتان بھی تھا، جس میں مکران بھی تھا، اور انہوں نے دکھایا مجھے اس لیے کہ 7 اس وقت دارالخلافہ. اور اب بلٹن میں خبر شامل کریں گے. اسپیکر اویس قادر شاہ کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کا اجلاس. مکیش کمار چاولہ نے بھارتی وزیر دفاع کے بیان کے خلاف قرارداد پیش کی. وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے ترمیمی آرڈیننس بل ایوان میں پیش کیا. سندھ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کا ترمیمی بل بھی منظور. زرعی انکم ٹیکس کا ترمیمی آرڈیننس ایوان میں پیش کیا گیا. ڈینگی کے متعلق کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ پی پی رکن سمیتا افضال کا توجہ دلاؤ نوٹس. وزیر صحت عذرا پیچوہو کا جواب. کہا کراچی ڈویژن میں ڈینگی سے 9,928 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ حیدرآباد میں 8,438 کیسز رپورٹ. محکمہ صحت نے بارشوں کے بعد ڈینگی کی وارننگ جاری کر دی تھی. 220 بستروں کا کراچی کے ہسپتالوں میں بندوبست ہے. صوبے بھر میں 1,533 بستروں کا ڈینگی کے مریضوں کے لیے اہتمام کیا ہے. اور اب بات کریں گے اہم اجلاس کے حوالے سے. آپ کو بتاتے چلیں شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ اطلاعات کا اہم اجلاس. سینئر وزیر کی محکمہ اطلاعات کو تمام فلمی اور میڈیا پروجیکٹس جلد مکمل کرنے کے احکامات. حکام کو صوبے کے جاری میگا پروجیکٹس اور ترقیاتی کاموں کی بروقت اور مؤثر تشہیر کی ہدایات. کہا صوبائی حکومت چاہتی ہے کہ فلم، ڈاکیومنٹری اور دیگر تخلیقی مواد کے ذریعے قومی بیانیے، قومی یکجہتی، امن، رواداری اور ترقیاتی اقدامات کو مؤثر انداز میں پیش کیا جائے. میڈیا کے ذریعے معاشرے میں مثبت پیغام پھیلانا وقت کی ضرورت ہے. محکمہ اطلاعات کو فلم اور میڈیا کے ہر شعبے میں وہ مواد تیار کرنا چاہیے. بڑے ترقیاتی منصوبوں، بنیادی ڈھانچوں کی بہتری، ٹرانسپورٹ، صحت، تعلیم اور توانائی کے شعبے میں ہونے والی پیش رفت کو مؤثر انداز میں عوام تک پہنچایا جائے. اور اب خبر شامل کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کا بے سہارا بیواؤں کے قبضہ کیس فوری حل کرنے کا حکم. مریم نواز شریف نے آرڈیننس 2025 کے مکمل نفاذ کی ہدایت دے دی. کہا جائیدادوں پر ناجائز قبضے کے خلاف ہر دن کی مانیٹرنگ ہوگی. تمام ڈپٹی کمشنر ناجائز قبضہ کیس پر روزانہ اجلاس کریں، خود مانیٹر کروں گی. اور اب خبر شامل کریں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے. آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا 7 دسمبر کو پشاور میں جلسے کا اعلان. وزیر اعلیٰ سہیل خان افریدی کی زیر صدارت پشاور کے پارلیمنٹینز کے اجلاس میں فیصلہ. جبکہ پشاور کی ترقی کے لیے 100 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں پر گرینڈ میٹنگ بلانے کا اندیا. سہیل افریدی نے کہا کہ پشاور کی عظمت رفتہ کی بحالی اور ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لائیں گے. پشاور صوبے کا دارالحکومت اور ہمارا چہرہ ہے. پشاور کے میگا پروجیکٹس اور درپیش مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے. بلٹن میں خوش آمدید. بلٹن میں خبر شامل کریں گے. سرکاری و تعلیمی اداروں کے احاطے اور اطراف میں سیاسی جلسوں اور اجتماعات پر مکمل پابندی. پشاور ہائی کورٹ نے سرکاری اور تعلیمی اداروں کے احاطوں میں غیر متعلقہ اجتماعات کے خلاف دائر درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا. جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے 5 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا. فیصلے کے مطابق تعلیمی اداروں، سرکاری مقامات اور انتظامیہ اداروں کے احاطے میں سیاسی اجتماعات کی اجازت نہیں ہوگی. سرکاری اداروں کے احاطے کے استعمال کی ذمہ داری متعلقہ افسران پر عائد ہوتی ہے. ان اداروں کا سیاسی استعمال روکنے کو یقینی بنایا جائے. دوسری جانب بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں وفاقی آئینی عدالت کی 3 رکنی بینچ کی سندھ حکومت کی اپیل پر سماعت. وفاقی آئینی عدالت نے گندم کوٹا سے متعلق کیس میں اہم حکم جاری کر دیا. عدالت نے گندم کے کوٹے سے متعلق کیس میں حکم دیا کہ پالیسی بنانا ایگزیکٹو کا کام ہے. سماعت میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ سپتین محمود عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ جو گائیڈ لائن سندھ ہائی کورٹ نے دی وہ آئین کے تحت نہیں تھی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ پالیسی بنانے کا اختیار ایگزیکٹو کا ہے.
आपको बताते चलें, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में वफाकी आईनी अदालत के 3 रुकनी बेंच की सिंध हुकूमत की अपील पर समाअत। वफाकी आईनी अदालत ने गंदम कोटा से मुतालिक केस में हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने गंदम के कोटे से मुतालिक केस में हुक्म दिया कि पॉलिसी बनाना एग्जीक्यूटिव का काम है। समाअत में एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध सिप्तैन महमूद अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो गाइडलाइन सिंध हाई कोर्ट ने दी वो आइन के तहत नहीं थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि पॉलिसी बनाने का इख्तियार एग्जीक्यूटिव का है। और अब खबर शामिल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 7 हलकों से कामयाब उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर NA 96 से बिलाल चौधरी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक NA 18 हरीपुर से बाबर नवाज खान कामयाब हुए। NA 104 फैसलाबाद से दानियल अहमद, NA 129 लाहौर से मोहम्मद नुमान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हुआ। NA 143 साहिवाल से मोहम्मद तुफैल, NA 185 डेरा गाजी खान से महमूद कादिर खान, PP 73 सरगोदा से मियां सुल्तान अली रांझा, PP 87 मियांवाली से अली हैदर नूर खान कामयाब हुए हैं। दूसरी जानिब बात करेंगे और आपको बताएंगे, पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 735 अरब रुपए इजाफे से 2300 अरब होने का इम्कान खदशा। आपको बताते चले, ज़राए के मुताबिक गर्दिशी कर्जा 1615 अरब से बढ़कर दोबारा 2350 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा है। रीबेसिंग, तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात कम और रिकवरीज बेहतर करने से 212 अरब कम बढ़ेगा। 522 अरब बाकी गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए 120 अरब रुपए की प्रिंसिपल रीपेमेंट्स होंगी। 400 अरब रुपए हुकूमती पावर प्लांट्स और IPPs को देकर स्टॉक जीरो रखा जाएगा। IMF शराइत के मुताबिक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा जीरो इनफ्लो रखना होगा। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान के मुताबिक सालाना रीप्रेसिंग की मद में 55 अरब रुपए वसूल होंगे। वेलकम बैक। और बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे। पाक फौज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में बारूदी मवाद और सुरंगों को तल्फ करने का अमल। वार ऑन टेरर के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में खवारिज दहशतगर्दी फैलाने और सिक्योरिटी फोर्सेस का रास्ता रोकने के लिए कबायली इलाकों में वसी पैमाने पर बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कल 140 मुरब्बा किलोमीटर इलाके में बारूदी मवाद और सुरंगों की निशानदही पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और अनथक काविशों के बाद अब तक 22 मुरब्बा किलोमीटर इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर किया जा चुका है। डीमॉनिटरिंग के दौरान पाक फौज के 5 जवान शहीद हुए, 115 जवान अपने हाथ पांव से महरूम हो चुके हैं। मजीद आपको बताएंगे, शुमाली वजीरिस्तान के मिशरान और कबायली उमायदीन का अहम चिरगा। सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तफसीली गुफ्तगू। GOC मीर अंशा ने चिरगा में मौजूद शुरका का खैर मकदम किया। सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, इंसदाद दहशतगर्दी और फलाही कामों पर तफसीली बातचीत की गई। GOC का कहना था कि आवाम, सिविल इंतजामिया और पाक फौज के बाहमी ताउन से ही दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो सकता है। कबायली उमायदीन की रियासती इदारों ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। आपको बताते चलें, शुमाली वजीरिस्तान के मिशरान और कबायली उमायदीन का अहम चिरका। साउथ वजीरिस्तान एजेंसी, हमारी पोस्टिंग आई हमारी यूनिट की, वो आई 13 में। हमने 2 महीने वहाँ पे ऑपरेशन किए। वहाँ का जो एरिया था, बाग एरिया और ख़ास कर ये पीर मेला एरिया, तो वहाँ की हमने क्लियरेंस की। तो उसके बाद 2 महीने के बाद हमारी जो पोस्टिंग थी वो आई राजगाल में। कैप्टन इरशाद यूनिट में आमतौर पे निहायत ही निडर और हमेशा कदम बढ़ाने वाले इंसान। 20 मई 2025 को एक खुफिया इतला मिली कि फितना अल-ख्वारिज की मौजूदगी तीरा राजगाल वैली में कुछ जगह पे है। हम नेक्स्ट डे उनके साइट्स पर चले गए। इसी असना में कैप्टन इरशाद ने कहा कि मैं इनके पीछे जाऊंगा और उन्होंने निहायत दिलेरी से उनके पीछे गए, उनके ऊपर फायर किया और हमा वक्त हम भी फायर कर रहे थे उसके ऊपर। वापसी पे जब मैं निकल रहा था तो मेरा जो पाँव था वो एंटी पर्सनल माइन के ऊपर आया, जिसकी वजह से मेरा जो आधा पाँव है वो वहाँ पे कट गया था। जब कैप्टन इरशाद को हम नीचे लेकर आए इसी ऑपरेशन में तो उनके पाँव ऑलमोस्ट तकरीबन जा चुका था और उनकी जूतों के साथ उनके उंगलियां लगी हुई थी। लेकिन कैप्टन इरशाद से जो पूछा तो उनके हौसले उस वक्त भी बुलंद थे।
ऑपरेशन के दौरान दुश्मन के मजबूत ठिकानों और पनाहगाहों को तबाह किया गया और नतीजतन 4 खारजी भी इस ऑपरेशन के दौरान मारे गए। अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ और पूरी कोशिश कर रहा हूँ और पूरी मोटिवेशन के साथ मेरी ये कोशिश है कि मैं फिर अपने पाँव पे खड़ा हो सकूँ। और अब आपको बताएंगे एफसी बलूचिस्तान नॉर्थ के जेर एहतमाम एफसी हेडक्वार्टर सुई में खुली कचहरी। आईजीएफसी, डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी, मकामी इंतजामिया और कबाली अमायदीन ने शिरकत की। अवामी मसाइल के हल, अमन इस्तेहकाम के क़याम, तरक्की और फलाह बहबूद के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर किया गया। आईजी फ्रंटियर कोर का कहना था कि बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का रास्ता अमन और एहतियात से वाबस्ता है। बलूचिस्तान के अवाम ने दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया है। हम सब ने मिलकर वतन दुश्मन अनासर की साजिशों को शिकस्त देनी है। इलाके में अमन कायम रखने में कबायली अमायदीन का किरदार निहायत अहम है। मजीद आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस का जराइम पेशा मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुज़िश्ता रोज कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 24 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबले में एक मुलजिम हलाक हुआ। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान से। ईस्ट पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन सामने आया है। गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई में की गई है। मजमूई तौर पर 24 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबले में एक मुलजिम हलाक भी हुआ है। गिरफ्तार मुलजिमान में 4 स्ट्रीट क्रिमिनल्स, 2 मंशात फरोश, 2 गुटखा मावा फरोश और 2 मफरूम मुलजिम भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक कार्रवाइयों में मुलजिमान के कब्जे से 4 पिस्टल, बम एमिनेशन, 3450 ग्राम चरस, 300 पुड़िया गुटखा मावा, 3 मोबाइल फोन और 5190 रुपए नकदी बरामद भी किए गए। ये कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से गुलशन इकबाल, थाना शारा फैसल, थाना PIB, जमशेद क्वार्टर, महमूदाबाद, मुबीना टाउन, सच्चल और सराबगोट और साइड सुपर हाईवे की हदूद में किए गए। जितने मुलजिम को गिरफ्तार किया गया उन सबके खिलाफ जो है FIR दर्ज कर तफ्तीश का अमल करके जेल रवाना कर दिया जाएगा। जी शुक्रिया एहसान काजी। और अब आपको बताएंगे मरीज सिटी पुलिस की कार्रवाई। कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने रवां साल 26 नवंबर को मरीज सिटी के इलाके बुरहाना टाउन में असगर शाह नामी शख्स पर फायरिंग की थी। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद अली के नाम से हुई। आपको बताएंगे मरीज सिटी पुलिस की कार्रवाई। कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने रवां साल 26 नवंबर को मरीज सिटी के इलाके में बुरहाना टाउन में असगर शाह नामी शख्स पर फायरिंग की थी। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद अली के नाम से हुई है। एक बार फिर आपको बताएंगे मरीज सिटी पुलिस की कार्रवाई। कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने रवां साल 26 नवंबर को मरीज सिटी के इलाके बुरहाना टाउन में असगर शाह नामी शख्स पर फायरिंग की थी। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद अली के नाम से हुई है। मरीज सिटी पुलिस की कार्रवाई। कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने रवां साल 26 नवंबर को मरीज सिटी के इलाके बुरहाना टाउन में असगर शाह नामी शख्स पर फायरिंग की थी। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद अली के नाम से हुई है। आपको बताएंगे मरीज सिटी पुलिस की कार्रवाई। कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने रवां साल 26 नवंबर को मरीज सिटी के इलाके बुरहाना टाउन में असगर शाह नामी शख्स पर फायरिंग की थी। मरीज सिटी पुलिस की कार्रवाई हुई है। कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अयाज वारियों से। जी अयाज बताइएगा। जी बिल्कुल, मलीर सिटी पुलिस की कार्रवाई। कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार किया गया है। 26 नवंबर को थाना मलीर सिटी के इलाके में असगर शाह नामी शख्स पर फायरिंग की गई, जो जख्मों की ताप ना लेते हुए मौके पर दम तोड़ गया, जबकि गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद अली के नाम से हुई है। मुलजिम को थाना मलीर सिटी के हदूद से बरीना टाउन से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 2 पिस्टल 9mm बरामद हुए हैं।
वाकये का मुकदमा थाना मली सिटी में दर्ज किया गया था। मली सिटी पुलिस ने 24 घंटों से कम वक्त में टेक्निकी इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेट कार्रवाई करते हुए कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इब्तदाई तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार मुलजिम ने इंकशाफ किया कि कुछ रोज से आपसी झगड़ा था जिसमें फायरिंग हुई थी, जबकि गिरफ्तार मुलजिम पहले भी मंशियात के मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। मुलजिम के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। मजीद मुलजिम की साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अयाज वारियो तमाम तफसीरात से आगाह करने के लिए। अफसोसनाक वाक़या शामिल करेंगे और आपको बताएंगे क्लिफ्टन चाइना पोर्ट के करीब खातून की तशद्दुद ज़दा लाश मिलने का वाक़या पेश आया। मकतूला की शनाख्त शहनाज के नाम से हो गई। मकतूला 5 बच्चों की मां और बेवा थी। खातून का ताल्लुक मसीही कम्युनिटी से है। मकतूला बेटे का कहना है कि वालिदा बाजार का बोल कर गईं और वापस नहीं आई। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस के मुताबिक खातून बल्तिया मदीना कॉलोनी से 22 नवंबर को लापता हुई थी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उसामा शाह से। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। कराची के इलाके क्लिफ्टन चाइना पोर्ट के करीब से 25 नवंबर को खातून की तशद्दुद लाश मिलने का वाक़या पेश आया था। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मकतूला की शनाख्त शनाज के नाम से हो गई है। मकतूला बेवा और 5 बच्चों की मां थी। एहलखाना लाश वसूल करने सदखाने पहुंच गए। एहलखाना के मुताबिक हमारी वालिदा बाजार का बोलकर निकली थी लेकिन वापस घर नहीं आई, जिसके बाद हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन कुछ मालूम नहीं हुआ। मकतूला के बेटे आदिल के मुताबिक मदीना कॉलोनी थाने में गुमशुदगी की दरख्वास्त भी दी, जबकि पुलिस का कहना था कि हम ढूंढते हैं। जबकि मकतूला के बेटे आदिल ने बताया कि कल शाम हमें मीडिया के जरिए पता चला कि हमारी वालिदा का इल्म हुआ। एहलखाना ने मजीद बताया कि हमारी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, हमें इंसाफ फराहम किया जाए। जबकि खातून बेवा और बलिया टाउन की रिहायशी थी और खातून का ताल्लुक मसीही कम्युनिटी से है। खातून मदीना कॉलोनी से 22 नवंबर को लापता हुई थी। पुलिस के मुताबिक मकतूला की लाश 25 नवंबर को क्लिफ्टन से मिली। जी शुक्रिया उसामा तफसीलात से आगाह करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।